Let's consider a particle which is moving along a curved path, and in order to define the position of this particle, we have defined this position vector r. Now, in fact, once the particle is changing its position along this curve, then this position vector r is basically changing both its magnitude as well as its direction. So, at one instant, this particle is located at this position p. At the next instant, say this particle has located to a new position which is being represented by p dash. So we define a second position vector, which is this position vector r dash, and the displacement vector is going to be this vector, which is delta r vector, and this vector is going to be r dash vector minus r vector. So this is how we can define the displacement of a particle, which is going to be equal to the new position vector minus the old position vector. And since both r dash and r are vector quantities, so it is not simply 5 minus 3 equal to 2. Basically, both r dash and r are going to be written in terms of some unit vectors, using some coordinate system, और फिर आप individually x, y या i, j और k components को add या subtract करके ये displacement vector जो है वो निकाल रहे होंगे. Probably चूंकि यहाँ r dash minus r है, so you are going to subtract the i, j के components of p dash या r dash vector के, उसमें से आप subtract कर रहे होंगे r vector को. So this is how you can define the displacement of a particle which is traveling along a curved path. जहाँ तक ताल्लुक वेलोसिटी का है, तो वेलोसिटी के लिए हमने जिस तरह लास्ट टाइम स्ट्रेट लाइन पाथ की बात की थी, द एवरेज वेलोसिटी इज गोइंग टू बी डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी. सो डेल्टा आर इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम डेल्टा टी पे डिवाइड करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द एवरेज वेलोसिटी. बट सिंस वी आर मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम करते क्या है कि वी आर गोइंग टू रिड्यूस दिस delta t smaller and smaller until limit delta t approaches to 0. So the instantaneous velocity is going to be v equal to limit delta t approaches to 0 delta r vector divided by delta t, and by the definition of a derivative, this is basically v vector equal to dr vector divided by dt. यानी जब भी आपके पास r vector as a function of time के तौर पे define हो, you are going to differentiate it once in order to find out the velocity vector. By definition, whenever a particle is traveling along a curved path, whatever coordinate system you are using, वो coordinate system पे depend नहीं करता, but that velocity vector is always going to be tangent to the curve at that particular instant. जिस तरह अभी इससे पहले बात हुई थी कि let us suppose मैं आपसे कहता कि ये particle जो है वो अगर इस instant पे मौजूद है, तो इस instant पे the velocity vector is going to be in this direction, that is tangent to the curve. इसी तरह अगर किसी instant पे ये particle यहाँ मौजूद है, तो then the velocity vector is going to be in this direction. So the velocity vector, whenever a particle is traveling along a curved path, the velocity vector's direction is going to be tangent to the curve. इसी तरह अगर हम acceleration की बात करें, if the particle has a velocity v when it is at position p and it has a velocity v dash once it moves to position p dash, यानी ये particle जब इस position पे था तो this is its velocity vector. इसी तरह जब ये particle p dash पे पहुंचा तो let us suppose that its new velocity vector is v dash. So the acceleration or the average acceleration is going to be delta v vector divided by delta t, where delta v is basically v dash, which is the velocity vector at the new position, minus v, which is the original velocity vector. So आपके पास जो average velocity है, that is being defined as delta v vector divided by delta t. But since again we are more interested in finding the instantaneous acceleration rather than the एवरेज एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हम करते क्या हैं कि आप अगेन इस डेल्टा टी को छोटे से छोटा करते चले जाएं until limit delta t approaches to 0 आ जाए. So delta v over delta t, and again by the definition of a derivative, this acceleration vector is going to be dv vector divided by dt. So again, if you have this velocity vector as a function of time, you are going to differentiate that velocity vector once in order to find out the acceleration vector. इसमें थोड़ी सी जो समझने वाली बात है वो यहाँ एक टर्म इस्तेमाल हुई है which is this hodograph. hodograph से पहले अगर जस्ट मैं आपसे पूछूं, और अगेन कोई एक स्टूडेंट जवाब दे सकता है कि जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, जिस तरह अभी जिक्र हुआ है, once the particle is moving in a curved path, the direction of this velocity vector is always going to be tangent to the curve at that particular instant. Acceleration का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? कोई एक स्टूडेंट जो जवाब देना चाहे. आउट ऑफ द प्लेन. नहीं, जरूरी नहीं है कि आउट ऑफ द प्लेन ही हो.
towards center of the curve. अच्छा, ये जो कहानी है ना, चले अगर हम 2D में कंसिडर करें और आपकी इस कहानी पे जाएं कि टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट, तो वो तो आपकी जो एक्सेलरेशन होती है टुवर्ड्स द सेंटर, कौन सी एक्सेलरेशन कहलाती है? Centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाती है। तो आपका वो जो कंपोनेंट या टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा होता है, बेसिकली दैट इज जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अभी हम आगे जब एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वो जो कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर होता है दैट इज जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। हाउएवर द टोटल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी द वेक्टर सम ऑफ इट्स टू कंपोनेंट्स, जो कि उसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है और एक वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होती है। बट जनरल टर्म्स में अभी अगर हम बात करें तो आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर जो है that is always going to be tangent to the hodograph at that particular instant। अब ये hodograph क्या है, थोड़ा सा अगर हम इस hodograph की definition पढ़ें कि the two velocity vectors v dash and v are plotted in the figure such that their tails are located at the fixed point o dash and their arrowheads touch points on the curve. This curve is called a hodograph। थोड़ा सा आप जरा गौर से इधर देखें। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक पार्टिकल है which is traveling along this curve path and at various instants इसके जो velocity vectors हैं वो आपको गिवन है कि एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर इसका सपोज ये v1 वेलोसिटी वेक्टर है, अगले इंस्टेंट पे ये v है, उससे अगले इंस्टेंट पे ये v2 है या v डैश है एंड सो ऑन। तो आपको हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर्स पता है कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज क्या है। होडोग्राफ किस तरह बनता है कि आप इन तमाम वेलोसिटी वेक्टर्स को एज पर स्केल, कोई ना कोई स्केल रख के एज पर देयर डायरेक्शंस एक ही कॉमन टेल पे रख के ड्रॉ करें। मसलन जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये वेलोसिटी वेक्टर v ड्रॉ हुआ हुआ है, इसी तरह वेलोसिटी वेक्टर v डैश ड्रॉ हुआ हुआ है, या अगर मैंने वेलोसिटी वेक्टर v1 ड्रॉ किया था उसको भी मैं किसी ना किसी स्केल पे रख के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से ड्रॉ करूं, तो ये तमाम के तमाम वेलोसिटी वेक्टर्स को मैंने कॉमन टेल पे रख के एक ही पॉइंट से जो है वो उनको एज पर स्केल एंड डायरेक्शन जो है वो ड्रॉ कर दिए। जब मैं इन तमाम वेलोसिटी वेक्टर्स के एरो हेड्स को ज्वाइन करूंगा तो मुझे जो कर्व मिलेगी दैट कर्व इज टर्म्ड एज अ होडोग्राफ। तो होडोग्राफ क्या होता है? इट इज अ कर्व व्हिच इज बीइंग जनरेटेड बाय ड्राइंग और बाय ज्वाइनिंग द एरो हेड्स ऑफ ऑल द वेलोसिटी वेक्टर्स once these vectors are being drawn from a single point, that is their tails are being placed at the same point o dash, और उसको मैंने स्केल और मैग्नीट्यूड के हिसाब से ड्रॉ करता चला गया और उनके एरो हेड्स को ज्वाइन करने से मेरे पास जो कर्व आएगा दैट कर्व इज बेसिकली टर्म्ड एज द होडोग्राफ। एंड द एक्सेलरेशन वेक्टर इज गोइंग टू बी टेंजेंट टू द होडोग्राफ एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट। मतलब मैं v1 की बात करूं तो यहाँ ये एक्सेलरेशन वेक्टर टेंजेंट टू द होडोग्राफ आ गया, इसी तरह ये एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया, ये एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया एंड सो ऑन। जिस तरह वेलोसिटी वेक्टर जो है दैट इज टेंजेंट टू द कर्व, एक्सेलरेशन वेक्टर जो होता है दैट इज बेसिकली टेंजेंट टू द होडोग्राफ एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो जब कभी आपसे कोई होडोग्राफ, बेसिकली होडोग्राफ का टर्म आपको और आगे इस बुक में शायद कहीं नजर ना आए, जस्ट आपकी इन्फो के लिए बताया गया है कि होडोग्राफ क्या होता है। इट इज बेसिकली अ कर्व which is being obtained by joining the arrowheads of all these velocity vectors once these vectors are being drawn from a common point, that is their tails are being placed at that common point और उनको अपने स्केल और मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो है वो ड्रॉ कर दिए। तो इस तरह आपको एक कर्व मिलती है जिसको हम होडोग्राफ कहते हैं। दैट एक्सेलरेशन वेक्टर इज गोइंग टू बी टेंजेंट टू द होडोग्राफ एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंस्टेंट पे आपका जो होडोग्राफ की कर्व बने वो एग्जैक्टली वही कर्व हो जो कि ओरिजिनल आपकी कर्व थी? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? जी, एनीवन वॉलंटियर? होडोग्राफ आ गया हर एक को? कोई एक स्टूडेंट जवाब दे दे। जी सर। अच्छा चलें, अब मैं आपको एक छोटी सी वो एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपके पास एक पार्टिकल है जो एक प्योर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रही। दैट पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग अ प्योर सर्कुलर कर्व विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं तो इट मींस कि आपके जितने ये वेलोसिटी वेक्टर्स बन रहे हैं ये क्या होंगे? मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे। सो जब आप इन तमाम वेलोसिटी वेक्टर्स को कॉमन टेल से रख के ड्रॉ करेंगे तो होगा क्या कि आपके तमाम वेलोसिटी वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हिसाब से
ड्रॉ हो रहे होंगे। ऐसा ही है, जब आप इन वेलोसिटी वेक्टर्स को एक कॉमन टेल पे रख के ड्रॉ करेंगे और उनके हेरोइड्स को ज्वाइन करेंगे तो एक तरह से आपका ये जो होडोग्राफ बनेगा ये भी एक प्योर सर्कुलर कर्व बन जाएगा, और आपका एक्सीलरेशन वेक्टर बेसिकली इस होडोग्राफ के टेंजेंट होता है। तो एक तरह से आपका पाथ भी सर्कुलर था और आपका जो होडोग्राफ बना है वो भी सर्कुलर बन गया। वजह क्या है कि दैट पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अराउंड अ सर्कुलर कर्व विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। उस सूरत में ये एक स्पेशल केस है जिसमें आपका होडोग्राफ भी एग्जैक्टली वही कर्व की शेप बन जाएगा। अदरवाइज अगर ये प्योर सर्कुलर कर्व नहीं होता तो डेफिनेटली आपके पास जो होडोग्राफ बनेगा दैट इज आल्सो गोइंग टू बी डिफरेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?